Hello friends, welcome to Bhimbetka, the cradle of human settlement in India. If you want to visit Bhimbetka, you have to come to Bhopal, and Bhopal means poha. So we started our day with poha. अरे पोहा कितने का है? हाँ दीजिए तीन पोहा और जलेबी दीजिए. वो क्या है? वो कचौरी. Now I am eating poha. Actually, red chile. We have come to Danish tea stall. These are relatives. To visit Bhimbetka, best economical way is to catch a bus to Obaidullaganj. We have taken a bus to Obaidullaganj. From there, we will go to Bhimbetka Rock Shelter. Obaidullaganj is 40 kilometers from here. We will hire a car from Obaidullaganj to Bhimbetka. We have reached Obaidullaganj. We came in this bus. From here, we will catch a jeep to Bhimbetka caves. From Obaidullaganj to Bhimbetka is 9 kilometers. It's best to hire cab from here. We hired an auto for 400 rupees. Dr. Vishnu Vakakar noticed rock structure from the train window on his way to Nagpur in 1957. Later, he came here and discovered it in the same year. From here, we'll leave highway and digress to Bhimbetka. From here, Bhimbetka is 3 kilometers away. If you do not book cab, you have to cross this 3 kilometers by walking. To enter Bhimbetka, which is inside Ratapani Wildlife Sanctuary, you have to pay charges. Bhimbetka means Bhim's resting place or Bhim's lounge, Bhimbetka. Locals believe that Bhim rested here during the exile of Pandavas. We have arrived at Bhimbetka Rock Shelters. This is our first sightseeing point. Here you can see 2 description boxes and this is our first entry gate. Bhimbetka is world famous for its rock paintings which are an UNESCO World Heritage Site. The rock paintings are of the 3 ages, Chalcolithic, Paleolithic, Mesolithic, and then after that some rock paintings are of historic age and medieval age. There are more than 750 rock shelters in this jungle. More than 400 cave shelters have paintings, but only about 20 caves are open to public. Most of the paintings are in red and white colors, while few are in green and yellow. The red ones are preserved best. So we start from shelter number 2. It's called Auditorium Cave. In shelter 2, known as Auditorium Cave due to its form, there are illustrations of bulls, buffaloes, deer, antelope, peacock, tiger, etc. But most of them are not very clear. Our first rock shelter is number 2. There were originally 46 paintings in this shelter, but they have faded due to nature. The clearest painting here is that of a horse rider. This is the only painting that can still be seen here. The other paintings have faded. It's thrilling that once upon a time, cave dwellers used to live in these very caves. In shelter number 1, the paintings were made of historic period. There are paintings of 2 elephants on upper ceiling with prominent tusks. One elephant was driven by a man. In shelter number 1, we are introduced to an excellent guide who elaborately describes the significance of these paintings.
इसी 1-2 हजार साल पुराने पेंटिंग पूरे भारत में सब जगह, मतलब मध्य प्रदेश के सब जगह आपको मिलेंगे। 2 साल में उड़ जाते हैं और प्राचीन एंशियंट कलर आज भी मिलता है। 1957 की बात है, एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे विष्णु वाकनकर, उन्होंने साइट को डिस्कवर किया। ही वाज एन आर्कियोलॉजिस्ट इन विक्रमा यूनिवर्सिटी। 1971-74 में यहाँ पे एक एक्सकेवेशन में कुछ स्टोन टूल्स मिले हैं जिनसे ट्राइब्स हंटिंग क्या करते थे, जो आप म्यूजियम भोपाल देख सकते हैं, स्टेट म्यूजियम में। दे फाउंड हियर द वन ह्यूमन बॉडी स्केलेटन, आदि मानव का एक नर्क निकाल के मिला है। कार्बन टेस्टिंग के बाद 6000 साल पुराना एज और स्केलेटन के इतने सालों तक प्रिजर्व रहने का रीजन कि दैट टाइम पीपल दे नॉट यूज द सॉल्ट, नमक नहीं खाते थे, इसलिए हड्डियां डिसॉल्व या डिकम्पोज नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे एक्सकेवेशन जंगलों में बहुत हुए दीदी। थाउजेंड्स पीपल दे यूज्ड टू लिव हियर। आधा भारत में ब्रिटिशर्स को भी नहीं पता चला। भीमबेटका की डिस्कवरी में ब्रिटिशर्स और मैकॉले की दी हुई हिस्ट्री में काफी कुछ करेक्शन करा दी, स्पेशल द चैलेंजेस ऑफ आर्यन इन्वेंशन। इसलिए हिस्ट्री का पहला चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्केलेटन के बचे रहने का रीजन कि दैट टाइम पीपल दे नॉट यूज द सॉइल, है ना सर। इन जंगलों में रहने की गुफाएं, पीने के नेचुरल वाटर सोर्स, खाने में एनिमल मीट्स एंड वाइल्ड फूड। जंगल में थे तो आदि मानव और जंगल से बाहर आदिवासी हो गए। तो मनुष्य के आदि मानव से आदिवासी बनने की कहानी यहीं से स्टार्ट हुई है। फिर बाद में जब यही आदिवासी 1-2 हजार साल बाद उत्तर भारत में जो राजा हुए, अशोका, कनिष्का, उनके इतिहास से जुड़े, तब इन्हें ये बिलीव हुआ कि इस दुनिया में हम ही नहीं है, हम नए लोग भी आ रहे हैं। तो आगे के चित्रों में आप हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग को भी देखेंगे। से खड़े होंगे, ऊपर का जो थोड़ा सा मेरे पास, और ये ऊपर का जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं हाइट का, कि इस हाइट तक वाटर वॉज हियर। तो पानी की हम बात आपसे कर रहे हैं ना, तो एक इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ तक वाटर रहा होगा दीदी। और सी वेव, समुद्र की लहरें जैसे स्टोन को काटती हैं, तो इन द सेम वे दिस रॉक हैज आल्सो बीन कट बाय द वाटर। तो सब ये नदियों के वाटर्स का ही कटाव रहा है 250-300 करोड़ साल पहले। तो सी लेवल से आप 2000 फीट ऊपर हैं। वी आर हेयर जंगल, देयर इज अ नेम ऑफ राता पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इन जंगलों में टाइगर, लेपर्ड्स, डियर सब कुछ है अंदर के। Amazing. Now we stand before shelter number 3. It's called Zoo Rock for its numerous animal paintings. The shelter displays total 453 figures, 252 animal species, 90 human species, and approximately 10 layers of superimposed paintings of Mesolithic, Chalcolithic and historical period. इनक्रेडिबल इंडिया के एड आते हैं दीदी, आपको याद है 90s में सुरभि आता था, रेणुकन सरदार का। बिलीव करें फर्स्ट एपिसोड हमारे यहाँ का है। उसके बाद ये 90s में प्रिंट मीडिया में बहुत पॉपुलर हुआ। फिर डिस्कवरी ऑफ इंडिया आता था शाम में निकल का। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री में इस जगह के बारे में बताया है। ये देखिए एनिमल्स के फिगर यहाँ काफी सारे हैं, लाइट जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिस्ट दिस पेंटिंग प्लेस लाइक ए एनिमल जू। 10,000 BC पुरस्तर जो ये पूरे भारत में सबसे पुराना है, मानव के द्वारा की गई पहली कलाकृतियों में। कंट्री ऑफ स्पेन में अल्तामीरा यहाँ 25,000 साल पुराना है। फ्रांस में लास्को, उसके बाद ही भीमबेटका को सेकंड ओल्डेस्ट का दर्जा मिला है। एनिमल वही हैं जो उस समय थे, जिन्हें देखा और जिनका शिकार हुआ है। एनिमल्स के फिगर के कारण इसको एक एनिमल के जू के नाम से कॉल किया है। मटेरियल जो व्हाइट है ये भी चूना है, कैल्शियम और वेजिटेबल कलर का यूज हुआ है। इनग्रेव, ईचिंग, स्क्रैचेस और कार्विंग नहीं है, ये सब लिक्विड कलर को ट्री ब्रांचेस के ब्रश से बनाया गया है। पाषाणकालीन इतिहास में इस फिगर को देखिए जिसमें एक अर्ली ह्यूमन 10,000 BC में जो हाथ में एक औजार लेके एनिमल्स को मार रहा है। फिर बाद में देखिए जब सभ्यताएं सिविलाइज्ड हुई तो उन्होंने मेसोलिथिक एज 5000 BC में आते आते एक एलिफेंट का डोमेस्टिकेशन किया है। और ये शो करता है दीदी कि एलिफेंट उस समय हमारे यहाँ होते थे और पहला पशु है जिसका डोमेस्टिकेशन हुआ है। प्रीमेटिव एज में दे गेट द हंटिंग लाइक ए स्पॉटेड डियर, एलिफेंट, मंकी, ये 12 शिंगा हिरन। और कई जगह देखिए इन्होंने एनिमल्स को मारने के बाद जब बॉडी काटते थे और अंदर के रिफ्स दिखते थे उसको भी शो किया है। तो वहां तक के फिगर ये आपके पूरे पैलोलिथिक हैं। थाउजेंड्स पीपल दे यूज्ड टू लिव हियर। तो उन्होंने एक ही जगह पे इतना फिगर बनाया है कि बहुत सारे फिगर यहाँ ओवरलॉकिंग में डिसअपीयर हुए हैं। पैलोलिथिक, ये मीजोलिथिक, और जब नियोलिथिक एज स्टार्ट हुआ तो दे स्टार्टेड द कल्टीवेशन। ये व्हाइट फिगर आप देख रहे हैं जिसमें मैन बिहाइंड द ऑक्स, ही स्टार्टेड द प्लाउ, जो भारतीय सभ्यता में कृषि की शुरुआत बता रहा है। और इन्हीं लोगों ने फिर 1-2 हजार साल बाद उत्तर भारत में जो राजा हुए, अशोका, कनिष्का, उनके इतिहास को देखा दीदी, जिनके स्तूप आप सांची जाएंगे तो ये देखिए आपको हॉर्स राइडिंग, ग्रुप फाइटिंग,
और तीर कमान लिए हुए युद्ध और शिकार पे जाते हुए बताया जा रहा है। अलग कलर में कलर अलग है, पर कलर के हिसाब से नया पुराना नहीं है। पाषाणकालीन पिक्चर में जो हॉर्स आपको नहीं मिलेगा, फिर जब बाद में अरब से हॉर्स आया तो लोगों ने उसका यूज किया है। पहले जो व्यक्ति लकड़ी के औजार से शिकार करता था वो बाद में धातु में बदल गया। पहले जो हंटिंग करता था वो बाद में उसको सवारी करने लगा। पहले जो नेकेड था वो बाद में बियर ऑफ क्लॉथ पहन रहा है। और इन सभी पेंटिंग के अलग अलग समय पे बनाए हुए सब्जेक्ट के आज तक बचे रहने का रीजन ये देखिए, शेल्टर जो बारिश के पानी को भी अंदर नहीं जाने देता है। तो अजंता में गुफाएं हमारे यहाँ शेल्टर है ना, यहाँ जाइए। और एक एक दो पेंटिंग के पैटर्न हमारे यहाँ बहुत यूनिक है। ये देखिए ज्योमेट्रिकल पैटर्न है ना, सब्जेक्ट जब सिविलाइज हुआ तो यही ज्योमेट्रिकल पैटर्न आज महाराष्ट्र में जो वर्ली आर्ट होता है, साड़ी सूट पे जो फिगर बनते हैं, तो वारली का जो एंशिएंट कल्चर देखिए आप कितना पुराना है, जो हमारे यहाँ से स्टार्ट हुआ है। और आज इन्हीं को वर्ली एंड मधुबनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कैसे पता लगता है कि ये पेंटिंग्स उस टाइम की है और अभी किसी ने नहीं टेस्टिंग और साइंटिफिक एनालिसिस हुआ है, और आप यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे हैं, तो ये सब ऑथेंटिकेशन साइंटिफिक। Now we are moving to the viewpoint. It seems that the whole history book is open before us. पॉइंट देखिए आप एक व्यू पॉइंट रिकॉर्ड रहे हैं, जाइए। देखो टॉर्टोइज रॉक। अरे वाह, गंगा के मैदान और ऊपर जाइए हिमालय। अब आपको और ऊपर भेजेंगे कैलाश। और जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ से पीछे पूरे भारत के जंगल, और जैसे नर्मदा क्रॉस करते हैं तो दक्षिण भारत चालू होता है। अभी आप उत्तर की तरफ हैं सर। मानसून में जब बारिश होता है तो नीचे का पानी एक बेतवा नदी के द्वारा जमुना और गंगा में, नीचे का वाटर इज गंगा और हमारे बैक साइड का पानी नर्मदा में जाता है। और जब ये पूरा वाटर में रहा है तो उस रॉक ने देखिए टॉर्टोइज। So who people used to hear, they have seen other but other could not see them. यहाँ से वो दूसरों और उन्हें कोई नहीं देख पाता था। नीचे ग्राउंड में इट्स यूज फॉर एग्रीकल्चर। अभी यह बात के वॉरियर्स कल्चर को देख के सभ्यताएं तेजी से विकसित हुई। 272 BC अशोका के इतिहास को देखने के बाद उन्हें यह बिलीव हुआ कि अब इस दुनिया में हम ही नहीं है, अब नए लोग भी आ गए हैं। मुझे सुनिए, bhimbedka.com, ये रॉक आर्ट ऑफ इंडिया आप ओपन करेंगे तो आप इससे मिलेंगे। हॉर्स को देखिए बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। एंड द मैन सिटिंग ओवर द टॉप, इट वाज अ किंग ऑफ अशोका, जो अपने ग्रुप को साथ लेके वॉर पे जा रहा है। ये आप कहें जैसे एक बारात जा रही है। और सीधा राइट एट द टॉप ऊपर दिख रहा है, ये लाइट जा रहा है, स्पॉटेड कलरफुल लेपर्ड। हाँ बोलो भैया। और इसे 3 मैन जो हॉर्स पे राइडिंग कर रहे हैं, उस लेपर्ड्स को घेर कर इसका हंटिंग कर रहे हैं। नीचे भी कुछ व्हाइट फिगर हैं जो उतने क्लियर नहीं है, पर रेड पेंटिंग 2000 साल पुराना बहुत नया है। ये देखिए होल्डिंग मैन, ये देखिए पीकॉक उड़ते हुए दिखा दिया आपको ना, ये हॉर्स राइडिंग। तो एक एक दो चित्रकारी बहुत अच्छा है। इस छवि का आप यहाँ से फोटो लीजिए और इसी पेंटिंग को हम एक बार और अंदर से देखेंगे। चलिए अंदर चलिए भैया। अगर आप यहाँ से खड़े होके उस पेंटिंग को आइडेंटिफाई करेंगे, सिर पे हाथ रखेंगे तो पेंटिंग तो वही आपको दिखेगा, बट दिस आउट ऑफ शेप ऑफ द रॉक देखिए, इट्स लाइक ए अपर जॉ ऑफ द टाइगर। कैन यू इमेजिन? देखिए जॉ ऑफ द टाइगर के साथ पेंटिंग तो अपनी जगह। हमारे यहाँ फॉर्मेशन जो है रॉक्स का कटाव, ये भी बहुत यूनिक है, बहुत क्लियरिटी पेंटिंग है। तो ये तो हिस्टोरिकल है 2000 साल पुराना, पर अगर आप पाषाण युग की बात करते हैं तो आपको फिर उस गुफा में जाना पड़ेगा। जल्दी से आके देखिए। These caves were the AC rooms of cave dwellers. এটা গ্রীষ্মকালে ঠান্ডা থাকতো আর বৃষ্টিতে গরম থাকতো। ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে আর্লি হিউম্যানরা থাকতো, এখানে এখানে থাকতো। গরমের সময় এখানে ঠান্ডা লাগছে না, এটাই বলছি। চলো।
का फिगर है। हाँ जी, कितना किया हाँ, इतना अच्छा कि इससे अच्छा कुछ नहीं। मेरे पास आइए और मुझे सुनिए, अभी कुछ नहीं बताया है, अभी हमने किसी को कुछ नहीं बताया, मैंने खुद को भी नहीं बताया है ना दीदी। मैनी रॉक पेंटिंग वी हैव सीन व्हाइट एंड रेड कलर। मेरे टॉर्च देखिए, फर्स्ट टाइम वी इंट्रोड्यूसेस द, देखिए ग्रीन एंड येलो कलर का पेंटिंग बना हुआ दिख रहा है आपको। तो ग्रीन कलर होता है, इट्स केम फ्रॉम कॉपर, है ना, कॉपर स्टोन जो होता है। और कलर ऑफ येलो भी ये येलो सॉइल से ही लेके बनाया है। कल्चर को हाईलाइट करने से पहले देखिए व्हाइट कलर का एक बेस प्रिपेयर किया है। पाषाण काल से लेके अब हम अशोका के इतिहास तक थे। कलिंगा वॉर के बाद जब उसने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करा तो सांची और सारनाथ में स्तूप बनवाए गए। उसके पेंटिंग को मैंने आपको दिखाया। अशोका के जाने के बाद एक डायनेस्टीज और आई। देयर इज अ नेम ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। ही वाज अ रूलर ऑफ उज्जैन। दैट इज द एरा ऑफ मिडिवेबल 3rd and 4th century AD, मध्यकाल कि इसके समय तक आते आते देखिए हिंदुइज्म वाज अ रिचुअल एंड द रूलर इन दैट टाइम दे स्टार्टेड द अश्वमेधा एंड राज्यशूर यज्ञ। तो इस पेंटिंग में आप देख रहे हैं अश्वमेधा का हॉर्स बना हुआ है कि यहाँ के जितने भी फिगर है उसमें हॉर्स ये बहुत ही ज्यादा सुपर फाइन बना हुआ है। और ये जो येलो कलर में एक फ्लावर पॉट है जिसमें ये ग्रीन लीव्स फूल आ रहे हैं। येलो कलर में कुछ फ्रूट्स है, पर ये मैन और एक एलिफेंट का जो फिगर जो दिखता है दैट इज द एरा ऑफ 5000 BC। ये बहुत पुराना है। और जिस गुफा में आप गए थे ना उसका एक निकलने का वेंटिलेशन यहाँ से आता है। तो गुप्त काल के बाद फिर लोग पेंटिंग्स अपने घरों में बनाने लगे, है ना। इस एजेस में लोग इन जंगलों में नहीं रहते थे। जब आते थे पुराना देखा और अपना मेंशन करके चले आते थे। भैया इसके पानी से देखिए फिगर खराब होगा। ये देख रहे हैं आपको काफी सारे फिगर्स हैं जिसमें ऊपर एक ट्री बना हुआ है। ये देखिए हॉर्स राइडर बना है। और जो आपने गॉड की बात की थी, मेरे पास आइए भैया, आपसे इधर आइए। तो गुप्तकालीन सभ्यताएं समाज बहुत ज्यादा सिविलाइज हो गया था। और जब दे स्टार्टेड द हिंदू कल्चर, जब उन्होंने गॉड का वर्शिप करना चालू करा तो ये देखिए एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है जिसमें एक फेमस गॉड ये शिव नटराज, ये दिख रहा है हाथ में त्रिशूल लिए हुए नटराज। और ये गणपति गणेश का फिगर है। अच्छा दिखना चाहिए पर बारिश के पानी से, हवा बारिश से पेंटिंग थोड़ा सा इफेक्ट हो गया सर, है ना। तो ये हॉर्स राइडर बना हुई है ना। तो ऐसा एक एक दो पेंटिंग ऑफ चित्रकारी इन जंगलों में यहाँ बहुत बनी हुई है। ठीक, आइए। In shelter number 11, there is a buffalo with large horns, and a galloping nilgai is depicted to its right. जो हॉर्स राइडिंग से जुड़े हुए थे ये सब अशोका कालीन इतिहास बताते थे, क्योंकि उस समय युद्ध ज्यादा होते थे। पर जब पुराने फिगर रॉक्स की गैदरिंग होने से खराब होने लगे तो बाद वाले लोगों ने आके, गुप्तकालीन लोगों ने देखिए अपने पुराने फिगर को बचाने के लिए उसके ऊपर रेड कलर से ओवरलोपिंग करा। देख रहे हैं दीदी। तो ओवरलोपिंग ना कहते हुए आर्कियोलॉजिकल की भाषा में इसे सुपर इम्पोज कहते हैं, सुपर इम्पोजिशन। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ डिस्ट्रॉयनेशन का काम मुगल के बाद ही आया। ये पहले हमारे कल्चर के जंगल देते हैं। प्लांटेशंस में आपको हमारे यहाँ हाइट ही मिलेंगी, मोटाई नहीं मिलेगी, थिकनेस, क्योंकि नीचे 2 सेंटीमीटर से ज्यादा सॉइल नहीं है। आपके हिमालय का पूरा पानी गंगा में और इन पहाड़ों का, माउंटेन्स का पूरा पानी रिवर ऑफ नर्मदा में जाता है। आइए, इस साल बारिश अच्छा हुआ तो जंगल काफी ग्रीन है। डियर है ना, दिख रहा है। तो एक एक दो जगह, सब जगह दीदी पेंटिंग बनाई है, दिख रहा है। वहां तक पेंटिंग्स थे। फ्री समय में किया जाने वाला काम स्टार्टेड द रॉक आर्ट। देखिए एक सुपर इम्पोज यहाँ पे कितना अच्छा दिख रहा है ना सर। ये रेड कलर के हॉर्स राइडर बताते हैं दीदी, स्कॉर्पियन, डियर, ये बर्ड, ये चिकन, ये लेपर्ड्स, और यहाँ पे भी कुछ चिकन वगैरह था और बहुत सारे फिगर थे। तो फ्री समय में किया जाने वाला काम, एक एक दो चित्रकारी इन जंगलों में बहुत है। हॉर्स मध्य भारत तक आने लगे। आदिवासी लोगों ने, वो लोग जिन्होंने हॉर्स को पहली बार देखा, एंड द पीपल दे डिडंट नो कि हाउ टू मेक हॉर्स प्रॉपर्ली। कि आपने देखा, आपको बनाना नहीं आ रहा है। बनाने का तरीका देखिए, ज्योमेट्रिकल पैटर्न, एक्स रूप में बनाना, कमर पतला है तो दुम ऊंचा है, और यही महाराष्ट्र का वर्ली आर्ट। In shelter number 7, there is a band of armor-clad soldiers and cavaliers of historical period. क्या होगा ये बताना मुश्किल है। अब मेरे पास है ये फाइटिंग के बाद एक फ्री समय में किया जाने वाला काम, आदिवासी ट्रेडिशनल डांस, ट्राइबल डांस। बाबा झारखंड में कर्मा, असम में बिहू, छत्तीसगढ़ में सांथाल। और ये देखिए यहाँ पे एक मैन है जो हाथ में एक बड़ा सा ड्रम लेकर बजा रहा है। दीदी इसको मांदल बोलते हैं, है ना। एंड द अदर पीपल दे आर होल्डिंग मैन, दे कैरी ईच अदर, जो एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एक सर्किल में नाच रहे हैं। ड्रमर के बगल में कपल्स देखिए फर्स्ट टाइम, हियर इज अ मैन एंड फीमेल। और एक वैसा ही ग्रुप डांस वो देखिए लास्ट। I am describing those caves which are still prominent.
Generally, visitors miss shelter number 12, 13, 14, 15 as they are little remote and you have to go down the hill. But do not miss them. They are equally important. In shelter number 13, here we see rhinoceros surrounded by 8 men and 3 enclosures. There is another painting of a boar following a crab. In shelter number 14, there are mushroom-shaped giant rock shelters known as Boar Rock due to enormous boar-like mythical figure. It has 2 crescent-shaped horns, a huge snout with whiskers and bristles on back. A figure of a fleeing man and a crab is showing near its mouth. There are 3 men near its forelegs. Shelter number 14 is a hunting scene. The mushroom-type structure of the rocks are very beautiful. Now we have reached the last rock shelter. This is number 15. This is famous for the Boar Rock, which you can see here. This is an animal that is almost clearly mythical. It is chasing a man with a crab in front of him. Here you get the toilet in the jungle. There is nothing, no food facility available. So if you are coming, make sure that you have enough food. Drinking water is there. So you may spend 2 hours to cover the rock shelters. Here is a temple nearby. You may visit it too. So we returned to Bhopal and had our lunch with dal bati churma. This is Hazi Hotel, famous for lassi and faluda. We came here and know that the hotel only opens during summer season. So our journey of Bhimbetka ends here. See you in Bilaspur and Raipur in our next episode. Please like, comment, share our videos and subscribe our channel. If you have any queries, feel free to write in the comment box. Bye, see you soon.